ایک فقیر اللہ والے پر جادو کا انجام کیا ہوا؟ محترم ناظرین، ایک بار کی بات ہے کہ ایک بہت خوبصورت سا گاؤں تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ راجکماری بے حد حسین اور جمیل تھی۔ اس کے بے مثال حسن کے سب دیوانے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو اس کے رشتے دوسرے راجاؤں کی طرف سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے مل بھی رہا تھا، لیکن اب تک کوئی اس کی بیٹی کے قابل نہ ملا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک فقیر اللہ والے آئے۔ ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حسین جوان بیٹی سے شادی کرنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات کی میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرأت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی؟ اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور اس کو قید خانے میں ڈالنے لگے۔ اللہ والے نے کہا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ بولا، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، اور ان کو بند کر دیا گیا۔ اس اللہ والے کو قید خانے میں کوڑے بھی مارے جاتے۔ یہ خبر جب راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا، تم بیچ میں مت پڑو۔ لیکن وہ اللہ والوں کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی ہوں کہ اس ملک کا راجا اس طرح کسی بوڑھے پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا، تمہاری بات مان لی جائے گی، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ راجکماری وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اس کی کنیز نے اسے بتایا کہ وہ بوڑھا دراصل اس کے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سمجھ گئی اس کے باپ نے اسی وجہ سے اسے قید کیا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پھر سے آئی اور کہا، کیا اس اللہ والے نے مجھ سے شادی کے لیے کہا ہے؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی بہت جدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے۔ پر اب جب سچائی معلوم ہو گئی تھی تو گرج کر بولا، میری اکلوتی پری چہرے والی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے اس بوڑھے نے سوچا بھی کیسے؟ پر راجکماری سمجھدار تھی، باپ کے سامنے اس وقت خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں کہا، اگر اللہ والا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ وہ اسی وقت قید خانے میں گئی اور کہا، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، میں جب تم سے شادی کروں گا اس کے بعد تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ راجکماری اس بوڑھے اللہ والے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے اتنے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے، اب شادی کا معاملہ ہے، مجھے جس سے شادی کرنی ہوگی میں اسی سے ہی کروں گی۔ بادشاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ اس کی اکلوتی شہزادی ایک فقیر اللہ والے سے شادی رچانا چاہ رہی تھی۔ وہ بولی کہ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی آنکھوں میں میں نے سچائی دیکھی ہے جو کہ آج تک کسی اور کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو ماننا ہی پڑا۔ اس نے خود ہی سلطنت کا اعلان کر دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت سادگی سے ہوگی۔ صرف نکاح ہوگا اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہ رہے گی بلکہ اس کی جھوپڑی میں جا کر رہے گی۔ جس سے شادی کر رہی ہے وہ بہت غصے تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس بوڑھے فقیر اللہ والے سے شادی کرے، پر وہ اپنی منمانی کر رہی تھی تو اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ کر اس غریب کی جھوپڑی میں اس کو رہنا پڑے گا۔ اس سے بڑی سزا ایک راجکمار کے لیے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ راجکماری اس بات پر مان گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں فقیر اللہ والے کی جھوپڑی میں جا کر رہوں گی۔ جب میں شادی کر ہی رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا تو پھر میں بھی وہیں رہوں گی۔ ایک انوکھی داستان تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک راجکماری نے ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ وہ چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مجھ غریب کا آشیانہ ہے، تم نے وجہ جانے بغیر مجھ سے شادی کر لی، تم بہت اچھی سوچ کے مالک ہو، میں تمہاری اس بات پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس یہاں پر اور کچھ نہیں، دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات کو میں عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لیتا ہوں، تم میرے ساتھ اس حالت میں کیسے رہو گی؟ اس نے کہا، اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ فقیر بولے، میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لوں گی،
चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो, चाहे कोई दरवेश हो। और उसी दिन आप हमारे पास आ गए तो मैंने अपनी उस दुआ को कबूल होते हुए देखा, इसलिए मेरे अब्बाजान भी रो रहे थे, पर मैं उनके फैसले के खिलाफ हो गई। मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान जानकर इस रिश्ते को कबूल किया है, तो फिर जो भी हो जाए मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वो इतनी साबिर थी कि वो फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत खुश थे। अब दोनों दिन में भूखे रहते और रात में अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। वो राजकुमारी शाही से गुजरकर फकीरी वाली जिंदगी गुजार कर भी आपसे शिकायत ना करती। वो बूढ़े फकीर उसके हक में दुआ करते, अल्लाह पाक मेरी बीवी मेरी खातिर ऐसे दिन देख रही है, मेरी खातिर उसने ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़ी है तो उसको इतना नवाज कि ये कभी सोच ना सके। एक दिन वो फकीर किसी काम से जंगल से बाहर गए। वहां बीबी से मिलने एक आदमी आ गया। वो आदमी दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा, आपके अब्बाजान आपको बहुत याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है उस फकीर के साथ या उसका दिल भर गया है उससे कह दो, अगर वह चाहती है यह रिश्ता खत्म हो जाए तो हम उसे अपने महल में वापस बुला लेंगे। राजकुमारी ने कहा, क्या लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं? मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। वह मेरे शौहर हैं और अब मैं उनसे कोई ताल्लुक कोई रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। उस नौकर ने कहा, आपके वालिद ने आपके लिए बहुत बड़ा मोती भिजवाया है और कहा है कि इस मोती को अपने पास रख लीजिए। आप इसको जब भी अपने पास रखकर कोई दुआ मांगेंगी तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहती हैं। और वह नौकर उस मोती को वहां रख कर चला गया। वह फकीर जब अपने काम से वापस लौटे तो मोती को सामने देखकर कहने लगे, यह किसने दिया है? तो उसने सारी कहानी बता दी। वह बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है तो आप अपने बाप के पास वापस जा सकती है। मैं आपके लिए कोई बददुआ नहीं करूंगा, मैं आपसे राजी रहूंगा, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहें। राजकुमारी ने कहा, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं और मुझे आपके साथ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रजा के लिए यहाँ पर हूँ। और रही बात इस मोती की, तो यह मोती तो मैं रखना ही नहीं चाहती थी, यह तो उस नौकर ने जबरदस्ती मेरे पास रख दिया है। तो वह फकीर बोले, क्या आपको इससे कोई लगाव नहीं है? यह आपके बाप की तरफ से भेजा हुआ तोहफा है। वह कहने लगी, नहीं, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिले, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी, वह मोती वहां से गायब हो गया। फकीर मुस्कुराए, आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई कि यह सब क्या हुआ है? आपने कहा, तुम एक नेक पारसा औरत हो, इसी वजह से वह मोती जहां से आया था वहीं चला गया। एक साबिर औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती। उम्र का इतना फर्क था तब भी उसको सुकून था, जिसने हमेशा शाही जिंदगी गुजारी हो। फकत 2 खजूरों पर गुजारा कर रही थी, यह बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी ना होती। एक रात वह फकीर अल्लाह वाले इबादत कर रहे थे जो उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी। फकीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल रखकर आ रहा था। उसने कहा, बादशाह, हुजूर ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो कि सिर्फ पानी पीकर तो वह मर जाएगी। उसके शौहर उसे खिलाने पिलाने के काबिल तो नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है जो वह मांगे, जो वह चाहे, हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। राजकुमारी फौरन बोली, मेरी कोई हाजत नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ और किसी से नहीं। राजकुमारी ने यह बात सुनी तो जवाब दिया और कहा, जिन्होंने खाना भिजवाया है उनसे कहो वापस ले जाएं। मुझे जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी, यह मैंने अल्लाह से दुआ की है। नौकर क्या करता, राजा का हुक्म था, इसलिए वही थाल लेकर खड़ा रहा। राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह मैं खाना नहीं चाहती। राजकुमारी की इस बात पर उस अल्लाह वाले फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह पाक, और इल्तिजा की कि अल्लाह अजल, यह तुझे इतना मानती है कि मेरी वजह से सब पर शुक्र कर रही है, कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा थाल उतार जो कभी किसी ने ना देखा हो। मोहतरम नाजरीन, फकीर अल्लाह वाले की दुआ सुन ली गई। आसमान से चांदी का थाल उतर आ रहा था जिसमें खाने रखे हुए थे। नौकर वह मंजर देखकर अपने होश खो बैठा और राजा की दी गई थाल को लेकर वापस महल चला गया। अब यहाँ पर उसे अल्लाह वाले ने कहा, तुम हमेशा बोलती हो ना कि अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएगा तभी तुम कुछ खाओगी, तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है। अल्लाह ताला दलाल की तरफ से राजकुमारी ने अपने शौहर के साथ मिलकर खाना खाया। शादी से लेकर अब तक आज पहली बार वह पेट भरकर खाना खा रही थी। उस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि वह खाना खालिस अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ से भेजा गया था। वह नौकर जब महल पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा, आप अपनी बेटी की फिक्र कर रहे हैं,
उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतार रहे हैं। वह तो बहुत अच्छी सी जिंदगी गुजार रही है। वह कोई फकीर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वह झोंपड़ी में क्यों रहता और मेरी बेटी मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकती। बादशाह के अपने मुलाजिम की इस बात पर कान तो खड़े हो गए थे, लेकिन उसके सामने उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी को आखिर खाना कहाँ से मिल रहा है। एक दिन वह चुपके से बेस बदलकर फकीर की झोपड़ी के पास पहुंचा। फकीर ने फिर से दुआ की थी, ए अल्लाह पाक, तू हमारे लिए आसमान से खाना उतार दे। राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि थाल उतरता हुआ आ रहा है और उसमें ऐसा खाना है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। न ही राजा के महल में आज तक ऐसा खाना पका था। यह सब देखकर उसका खून खौल गया। वह अपने महल में आ गया और टहलने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह फकीर कोई जादूगर है, तभी तो खाना उसकी तरफ ऊपर से उतरता आ रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा कि हमें उस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। उसने तो जादू करके हमारी बेटी हमसे छीन ली है। क्या कोई है उसकी टक्कर का? मुझे फौरन चाहिए, मुलाजिम ने कहा। जी हाँ हुजूर, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो कि उसे लड़ सकता है। वह यहाँ का पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी का जादू काम नहीं करता, सब नाकाम है। उसके सामने वह दरवेश क्या है, 70 साल का बूढ़ा जिसके पैर खुद कब्र में लटक रहे हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उसको बुला कर लाओ। जब वह जादूगर को सारी बात बताई गई और कहा कि वह अल्लाह वाले फकीर इस तरह उनकी बेटी को ले गए हैं और इस तरह जादू के तौर पर खाना खिला रहे, पसंद का खाना खाएगी तो जाहिर सी बात है उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू किया और अमल करने तक उसको पता चल गया कि वह कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग है और उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया। उसने कहा, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनके आगे खड़ा हुआ तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। बादशाह बोला, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? वह कहने लगा, बस मैं कोई जादू नहीं कर सकता। बादशाह यह सुनकर भड़क गया, क्योंकि अब तक वह बर्दाश्त कर रहा था। अपनी बेटी की उसने हर जिद मानी थी और अब जबकि उसकी बेटी को खाना भी मिल रहा था तो उसने सोच लिया कि मैं खुद ही यह अमल करूंगा। उसने जादूगर से कहा, अगर तुम यह जादू नहीं कर सकते और मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकते तो मुझे ही सिखा दो यह करतब और यह अमल। जादूगर ने बादशाह को मना किया और कहा, आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा, मुझे किसी भी कीमत में अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने राजा के कहने पर उसको अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बेटी तो अल्लाह का नाम ले रही थी और शौहर का भरम रख रही थी, नमाज पढ़ रही थी, इस्लाम के करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोंपड़ी की चटाई पर सोने में मिल रहा था वह कभी महल के नरम गद्दे पर न मिला था। लेकिन उसका बाप वहां पर इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लग गया था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले से नहीं हारना था। जादूगर ने बहुत कम वक्त में राजा को सारा अमल सिखा दिया और कहा, सोच समझकर आप यह दांव खेलिए, नुकसान के बारे में आपको बता चुका हूँ। बादशाह ने कहा, मैं नहीं डरता किसी भी नुकसान से, बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अब वह वक्त आ गया था कि बादशाह वह अमल कर रहा था। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में ऐसी ताकत मांग रहा था कि जिसके जोर पर वह फकीर को खत्म कर देता। लेकिन वह अल्लाह वाले फकीर तो जिस पाक परवरदिगार से दुआ मांग रहे थे उसकी ताकत के आगे तो कोई भी ताकत काम नहीं करती। यहाँ पर रहमानी और शैतानी ताकतें आमने सामने खड़ी थी। शदीद किस्म का मुकाबला चल रहा था। अल्लाह वाले फकीर समझ चुके थे कि कोई उनके साथ छेड़खानी कर रहा है और उनकी बीवी उनसे अलग कर दी जाएगी। यह किसी भी सूरत वह नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था वह उसी वजह से तो किया था। फिर उन्होंने कुरान ए पाक खोला और उसकी तिलावत शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरफ मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उसकी तरफ पलट जाते। अब उसने जो सबसे खास बात जो जादूगर ने सिखाया था और जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता था, बादशाह ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बड़ा सा मोटा ताजा जंगली बंदर आ गया। बादशाह ने कहा, जाओ और जंगल में जो फकीर है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। बादशाह के हुक्म पर वह बंदर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह वाले फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान ए पाक की तिलावत कर रहे थे। वह तो बादशाह के हुक्म पर वहां पर पहुंचा था और फकीर को चीर फाड़ भी देता। लेकिन जब अल्लाह वाले की खूबसूरत आवाज सुनी वहीं बैठकर तिलावत सुनने लगा और सारा जादू यहीं खत्म हो गया। फकीर ने उस बंदर की तरफ देखा और फिर आपने अल्लाह ताला का नाम लेना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम आप जैसे जैसे लेते जा रहे थे वहां पर बादशाह की हालत खराब हो रही थी।
जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था कि जादू अगर उलट गया या कोई और गड़बड़ हुई तो आपके साथ वह होगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा और वह जानवर जिसके जरिए आप मदद लेना चाहेंगे, और क्योंकि उसने बंदर को चुना था अल्लाह वाले पर हमला करने के लिए तो उसकी शक्ल बंदर जैसी ही बन गई और वह बंदर जो उस फकीर पर हमला करने के लिए आया था वह वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने राजकुमार की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी कहने लगी, आपने ऐसा क्या किया है? फकीर बोले, तुम्हारे बाप की शक्ल एक बंदर जैसी बन गई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया था वह उस पर ही पलट गया। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अब हमें फौरन महल चलना चाहिए, देखे तो माजरा क्या है। वह अपने शौहर के साथ जब महल पहुंची थी तो वहां पर भागम दौड़ मची हुई थी। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया है, उसकी शक्ल एक जानवर जैसी कैसे बन गई। फकीर को दरवाजे पर देखकर दरबानों ने अंदर नहीं आने दिया और कहा, यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसने ही हमारे राजा को इस हाल तक पहुंचाया है। राजकुमारी ने कहा, मैं इस जगह की राजकुमारी हूँ, मुझे अंदर आने दो। वह अंदर आई तो अपने बाप को उसने इस हालत में देखा कि आंसू बह रहा था और अपना सर पीट रहा था। उसका सर बंदर जैसा और बाकी धड़ इंसान जैसा था। वह भी तो बेटी थी। अपने बाप की इस शक्ल को देखकर वह रोने लगी। उसने कहा, आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है? वह तो सच में एक बंदर की तरह ही बन गया था। वह जैसा भी था उसका बाप था और वह भी बेटी थी। अपने बाप की इस शक्ल को देखकर रोने लगी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आपने क्यों मेरे शौहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें वजह नहीं बताई, तुमसे शादी की। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसे सल्तनत के शहजादे से बचाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था, पर उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी और मैं उसकी शादी तुमसे करके वो मुल्क भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो। तुम हमेशा यही चाहती थी कि तुम्हारा शौहर सच्चे रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम राजकुमार से मिलने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे इस शख्स का झोंपड़ा नजर आया तो मैंने उसे वहां पर इबादत करते हुए देखा। मुझे फकीरों से बहुत नफरत थी तो मैंने ऐसे ही कर दिया। मेरी बेटी तो ना जाने कैसा शौहर चाहती है, पर मैं तो कभी इस फकीर से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहूंगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, चाहे वह गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। फिर वहां से मैं गुजरने लगा तो इस बूढ़े ने मुझे रोककर कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? एक मुसलमान होकर आप अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको मान देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वह अल्लाह से डरने वाला होगा। उससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। यह दौलत, यह महल, यह सब यहीं रह जाएंगे। आखिर में वही रहेगा जो आपके साथ होगा, आपका दोस्त होगा और जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा, बस। मुझे उसकी यह बात बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा, तूने यह बात क्यों कही? तू कौन होता है मुझे कहने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहां भी करूं, मैं उससे इतनी नफरत करने लगा था कि अपने सिपाहियों से उसको कोड़े भी पड़वाए थे। पर यह फिर भी मुझसे कहता रहा कि आप अपनी बेटी पर जुल्म ना करें, इसलिए यह महल में आ गया था तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर अपनी जान देने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 70 साल के बूढ़े से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर है, झोपड़ी में रहता है, तुम्हें कहां से कुछ दे सकेगा। तुम तो महलों में राज करने वाली राजकुमारी, तुम चंद दिनों में वापस आ जाओगी। पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहां रहकर इबादत भी की। तुम भूखी भी रहती थी और फिर भी तुम महल नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने का थाल उतर रहा है तो फिर मैंने वह जादू किया जो मुझे करना चाहिए था। आज मैं मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि जादू करने वाला अपने मजहब से बाहर हो जाता है और मेरी शक्ल एक नापाक जानवर जैसी हो गई। फिर वह बादशाह उस अल्लाह वाले फकीर से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, बेटी को बहुत दुख पहुंचा था। उसने कहा, आपने तो चाहा कि मेरी शादी ना हो, मैं ऐसी जिंदगी ना जीऊं, लेकिन अल्लाह ने जो चाहा वही सबसे बेहतर होता है और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है जो कि अल्लाह से डरता है, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, ईमानदार है, अमानतदार है। वह अपनी बीवी को इज्जत भी देता है। मैंने हमेशा चाहा कि मुझे जो भी मिले अल्लाह ताला की तरफ से मिले, इसलिए खाना भी आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से उतार कर आता है। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने दिया है। अगर वह 70 साल का है तो मैं इस बात पर भी खुश हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है वही अल्लाह की नजर में अच्छा होता है। तो मैं क्यों एक राजकुमार को ढूंढूं जिसकी बड़ी सी सल्तनत हो लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह से दुआ मांगती हूँ वह मुझे मिल जाता है, और फिर मुझे क्या चाहिए।
ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے میں اس فقیر کی شکل بدلی اور وہ جوان خوبصورت ہو گئے۔ اس نے جب اپنے شوہر کو غور سے دیکھا اور کہا آپ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا تمہارا شوہر ہوں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ راجا بھی بڑا حیران تھا جو اپنی حالت پر رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا۔ اس نے 100 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا، خود تو اس کی شکل ایک بندر کی طرح ہو گئی، لیکن وہ بڑے اللہ والے ایک خوبصورت نوجوان میں ڈل گئے۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا شوہر ہوں جو تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ تم کہتی ہو نا جو مجھے ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو گی تو بہترین ہی ملے گا، اچھا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ جو دیتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تم نے صبر شکر کی زندگی گزاری، میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کی۔ اللہ پاک نے تم سے خوش ہو کر تمہیں خوبصورت شوہر دے دیا جو تم حق رکھتی ہو۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگا تو اس نے کہا کیا ہم اس جھوپڑی میں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں کی تم ملکہ بنو گی۔ یا جھوپڑی یا جنگل اور خالی پیٹ یہ سب تمہارا امتحان تھا، پر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب وجہ پتہ چلے گی تو تم اللہ کی شکر گزار ہو جاؤ گی۔ اس نے اللہ سے جواب مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ بے شک جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔